Hello everybody. In the previous lecture we discussed about tree. What is tree? Tree is a connected graph which has no circuit, and also we have done important theorem T is equal to VE, be a connected graph. Then T is tree if and only if for every pair of vertex there exists unique path between two vertices. Now next important theorem, let T is equal to VE be a connected graph. Be a connected graph. Then T is tree if and only if number of edges is equal to number of vertices minus 1. First let us suppose T is tree, required to prove n equal to n minus 1. We prove this by induction on n. If n is equal to 1, there is only one vertex. There is only one vertex. Therefore number of edges equal to 0. Hence m equal to n minus 1. This condition is satisfied. Next, if n equal to 2, if n equal to 2, then m equal to 1. Why? There are two vertices. There is only edge between two vertices. If there are more than one edge, then this becomes parallel edges. अगर यहाँ पर आपकी two edges हैं तो वो क्या हो जाएंगी? Parallel edges हो जाएंगी. और पैरेलल एजेस हो जाएंगे तो वो ट्री नहीं रहेगा, आपका सर्किट बन जाएगा एक तरह से, ठीक है ना. अगर यहाँ पे एक एज और हुई तो क्या होगा? सर्किट हो जाएगा. और सर्किट टी के पास सर्किट नहीं है, टी है आपका ट्री और इट हैज़ नो सर्किट. देयरफॉर एज क्या होगी? सिर्फ 1 होगी. तो m इक्वल टू n माइनस 1, ये भी आपकी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है. देयरफॉर फॉर n इक्वल टू 1 2 रिजल्ट इज ट्रू. For n greater than equal to true, let us assume result is true for tree T1. T1 is equal to n1 m1, where n1 is less than n. We have m1 equal to n1 minus 1. हमने assume किया है कि n1 less than n के लिए और n greater than equal to 2 के लिए रिजल्ट क्या है? आपका ट्रू है. ट्रू होने का मतलब m1 equal to n1 minus 1 है. हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that हमें क्या करना है? This is ये रिजल्ट m इक्वल टू n माइनस 1. इस रिजल्ट पे हमें क्या करना है? पहुंचना है. फॉर दिस लेट xy belongs to t, be any two vertices. You know t is tree, therefore there exists unique path between x and y. Say p x equal to x1 e1 x2 xn plus 1 equal to y. You know there is a t is tree, therefore there exists a unique path between x and y. Okay, let us construct another graph. Say t dash. T dash is equal to v e dash, where v is equal to v, b dash equal to v, and e dash is obtained after removing the edge e1. After removing the edge E1 from the tree, this, ठीक है. Now अब आपको देखो यहाँ पे अगर आपने E1 एज को रिमूव कर दिया तो x1 और x2 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना. x1 और x2 के बीच में जो पाथ है सिर्फ यही यूनिक. आपको पता है कि आप कोई भी x1 x2 क्या है? x1 x2 आपके V से बिलोंग करते हैं, ठीक है. यानी x1 x2 आपके ट्री से है. ट्री है, इस वजह से x1 x2 के बीच में सिर्फ यूनिक एक ही पाथ होगा, यूनिक पाथ होगा, वो ये है. ओके, यूनिक पाथ वो ये है. अगर आपने E1 एज को उसमें से निकाल दिया, ट्री में से E1 एज ये जो एज है E1 इसे निकाल दिया और इनके बीच में यूनिक पाथ था, तो x1 और x2 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा. कनेक्शन नहीं रहेगा तो t डैश क्या हो जाएगा आपका? देयरफॉर t डैश क्या हो जाएगा? t डैश इज डिसकनेक्टेड. t डैश आपका डिसकनेक्टेड हो जाएगा. नाउ वी prove, we will show that it has two connected components. You know, every disconnected graph can be broken into its k connected components. We will prove that it has two connected components. कैसे प्रूव करेंगे? हम two connected components इसके प्रूव करेंगे. एक तो हम लेते हैं यहाँ पे v डैश, v1 डैश क्या डिफाइन किया? ये वो वर्टिस का सेट है. v इज कनेक्टेड टू x1 और v2 डैश में क्या है? v2 डैश दोज वर्टिसेस v इज कनेक्टेड टू x2. ओके, नाउ v1 एंड e1 डैश, E1 डैश आपका क्या है? दिस इज दी
E dash, E is equal to UV for some UV belongs to P1 dash, and E2 dash is equal to E belongs to E dash such that equal to UV for some UV belongs to V2 dash. ओके, अब आपका ये है, एक तो ये वर्टेक्स का सेट है और एक ये वर्टेक्स का सेट है, ये इनकी एजेस का सेट है, ठीक है। ई डैश के अंदर वो एजेस है, E1 डैश में वो एजेस हैं जो इनके क्या करते हैं, V1 डैश के वर्टेक्सेस को क्या करती है, कनेक्ट करती है। V1 डैश के वर्टेक्स के बीच की एजेस हैं E1 डैश के अंदर, ठीक है। और ये अब आप ये देखो, सिंस जो आपका T डैश हमने लिया, V1 डैश और E1 डैश, ये एक ग्राफ हो गया, ये कनेक्टेड होगा, दिस ग्राफ इज कनेक्टेड, ओके। V इज, क्योंकि आपको पता है V इज कनेक्टेड टू x1, V आपने V से वर्टेक्स लिया, V एक तरह से ट्री के अंदर है, ठीक है, और x1 भी ट्री T में है, और आपको पता है कि कोई भी दो वर्टेक्स हो उनके बीच में कनेक्शन होगा, यूनिक पाथ एग्जिस्ट करेगा, तो इस वजह से जो है V आपका क्या है, कनेक्टेड टू x1, इसके अंदर एलिमेंट होगा। देखो आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो x1 है वो तो V1 डैश से बिलोंग करेगा और x2 बिलोंग्स टू V2 डैश, ठीक है। x1 V1 डैश के अंदर है, देयरफॉर क्या है, ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। सेकंड आपका क्या है, नॉन एम्प्टी हो गए, ठीक है। हम प्रूव क्या करेंगे कि जो ये है ना आपका V1 डैश और E1 डैश, ये क्या है, कनेक्टेड, और ये आपका दूसरा, ये आपका T1 डैश हो गया और T2 डैश, ये आपके क्या है, हम ये शो करेंगे कि ये इसके क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, और सच दैट V1 डैश इंटरसेक्शन V2 डैश क्या है, एम्प्टी है, और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। और V2 डैश से सेम x2 बिलोंग्स टू दिस। अब आप देख सकते हो कि x2 V1 डैश के अंदर नहीं है, क्योंकि x2 जो है वो इससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, x2 इज नॉट कनेक्टेड टू x1, ओके। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, इन T डैश के अंदर, समझ गए आप बात, क्योंकि अगर T की बात करते हैं तो x2 जो है वो x1 से कनेक्टेड है, ट्री के अंदर तो x2 x1 से कनेक्टेड है ना, ट्री में x2 x1 से कनेक्टेड है, बट जो हमने T डैश नया ग्राफ लिया जिसमें एज E1 को रिमूव कर दिया, जो x1 x2 के कनेक्शन को रखती थी, तो उस वजह से अब T डैश के अंदर जो है x2 डू नॉट बिलोंग्स टू V1 डैश, x2 नॉट कनेक्टेड टू x1, और सेम आपका x1 इज नॉट कनेक्टेड टू x2, ठीक है। अब अगर आपका कोई वर्टेक्स, नाउ इफ V बिलोंग्स टू V1 डैश है, देन V डू नॉट बिलोंग्स टू V2 डैश, क्यों, क्योंकि अगर V बिलोंग इन किसके अंदर, T डैश में, ठीक है, अगर V V1 डैश से है, दिस इंप्लाइज V इज कनेक्टेड टू x1, ओके। और अगर V V2 डैश से बिलोंग कर गया तो V कनेक्टेड हो जाएगा x2 से, तो उससे क्या हो जाएगा, x1 कनेक्टेड है V से, V कनेक्टेड है x2 से, तो x1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा, x2 से, किसमें, T डैश में, किसमें हो जाएगा, T डैश में, पर T डैश में x1 और x2 के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, इस वजह से दोनों सेट ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट्स हैं, ओके। V1 डैश और V2 डैश क्या है, आपके म्यूचुअली डिसजॉइंट्स आपके सबसेट्स हैं V के। तो आपका क्या हो गया, ये एक, और ये आपस में क्या, ये V1 डैश क्या है, ये भी कनेक्टेड है, और V2 डैश भी क्या है, ये भी कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल गए, ये क्लियर है ना। देखो V इज कनेक्टेड टू x1, इसका मतलब क्या है, V x1 से कनेक्टेड है, और तो अगर V x1 से कनेक्टेड है तो V x2 से कनेक्टेड नहीं होगा T डैश में, क्योंकि अगर V x2 से कनेक्टेड हो गया तो x1 V से कनेक्टेड है और x2 V से, और तो x1 x2 से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से म्यूचुअली डिसजॉइंट हो गए। तो हुआ क्या आपका, जो आपका ये ग्राफ था T डैश, जो हमने नया ग्राफ लिया था डिसकनेक्टेड, ये वाला, इसके दो कनेक्टेड, उसके हमें दो हमें क्या मिले, टू म्यूचुअली डिसजॉइंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये इसके टू म्यूचुअली डिसजॉइंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। अब आप देखो, सिंस T हैज नो सर्किट,
circuit. So this implies T dash also has no circuit. Okay. और this implies T1 जो इसके connected components हैं उनके पास T1 dash और T2 dash also has no circuit. ठीक है. और T1 dash क्या है, connected ग्राफ है और उनके पास सर्किट नहीं है, तो इस वजह से T1 dash और T2 dash क्या हो जाएंगे, तो therefore T1 dash is 3. Okay. Also order of E1 dash जो कि हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं N1 M1 और ये मान लेते हैं M2 M2. ठीक है. यानी कि आपका क्या है N1 वो लेस देन किससे है, N से. Therefore क्या हो जाएगा इंडक्शन से M1 इक्वल टू N1 माइनस 1. सिमिलरली क्या है आपका, ये ट्री है, N2 लेस देन M है, तो क्या होगा सिमिलरली M2 आपका क्या हो जाएगा N2 माइनस 1 ट्री से. ठीक है. ऑल्सो आपका क्या है, इन दोनों का सम, इसमें एजिज E1 डैश और E2 डैश M1 प्लस M2 किसके इक्वल है, M माइनस 1, क्योंकि E डैश किसके इक्वल है, E डैश इज इक्वल टू E1 डैश यूनियन E2 डैश. इसके कनेक्टेड क्या है, कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. और V इज इक्वल टू क्या है, V1 डैश यूनियन V2 डैश. आपको पता है E डैश का ऑर्डर कितना है, E डैश में क्या है, सिर्फ हमने क्या रिमूव किया है, E डैश के अंदर हमने क्या रिमूव किया है, एक ही एज रिमूव किया है, तो इसका ऑर्डर कितना है, M माइनस 1 है. ठीक है. E डैश का ऑर्डर कितना है, M माइनस 1, क्योंकि एक ही एज रिमूव किया है. E का ऑर्डर M था तो M माइनस 1. ठीक है. और ये इसके यूनियन के बराबर है, तो ये इनका सम किसके इक्वल आएगा, M माइनस 1 के. ठीक है. M1 प्लस M2 इन दोनों को ऐड करो आप, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज राइट, ये ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, N1 प्लस N2 माइनस 2 इज इक्वल टू M माइनस 1. तो यहाँ से क्या आएगा, N1 प्लस N2 किसके इक्वल है, N1 प्लस N2. V इक्वल टू क्या है, V1 डैश यूनियन V2 डैश. तो यहाँ से क्या आएगा, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2. ठीक है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज N माइनस 2 इक्वल टू M माइनस 1. तो दिस इम्प्लाइज M इक्वल टू N माइनस 1. हेंस रिजल्ट इज प्रूव. Converse part. Let us assume T is equal to VE be an connected graph such that M equal to N minus 1. Required to prove क्या है, T is 3. Similarly we prove it by induction on N. When N1 this implies M 0. hence T क्या है आपका, is 3, क्योंकि उसके अंदर एक ही वर्टेक्स है. When N2 तो M क्या हो जाएगा 1, एक ही एज होगी, तो कोई पैरेलल कोई सर्किट नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज T is 3. hence result is true for N equal to 1 and N equal to 2. now same आपका by induction for N greater than equal to 2 we assume result is true for fourth connected graph T dash is equal to V dash. for connected graph T dash is equal to where order of for connected graph for connected M1 graph where M1 equal to M1 minus 1 and N1 is less than N. ठीक है. हमने क्या मान लिया, रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, इन कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए ट्रू है, जिनका ऑर्डर क्या है, N1 M1 है और N1 क्या है, लेस देन N है. ठीक है. मतलब ट्रू होने का मतलब क्या है, इस तरह के ग्राफ्स जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 1 है और नंबर ऑफ एजेस किससे लेस देन है, N से लेस देन है, वो क्या होंगे, ट्री होंगे. ठीक है. समझ आ गई. रिजल्ट इज ट्रू फॉर द कनेक्टेड N1 M1 ग्राफ
for connected n1 m1 graph n1 t dash is equal to p dash e dash where m1 equal to n1 minus 1 connected n1 m1 ग्राफ जिसमें कंडीशन ट्रू होती है और n1 लेस देन क्या है n से है, तो वो उसके लिए रिजल्ट ट्रू होगा। मतलब इस तरह के कनेक्टेड ग्राफ्स कैसे होंगे, ट्री बनेंगे आपके, ठीक है, ट्री बनेंगे। और नाउ नेक्स्ट वी शो P equal to BE has pendant vertex. Suppose T has no pendant vertex. Pendant vertex कौन सा होता है, जिसकी क्या हो, जिस vertex की डिग्री 1 हो। T has no pendant vertex. Therefore degree of each vertex P greater than equal to 2 for all B belongs to P. तो this implies summation सभी वर्टिसेस का B बिलोंग्स टू B समेशन B ग्रेटर देन इक्वल टू कितने हैं आपके 2n, और ये क्या होता है ट्वाइस m, दिस इज इक्वल टू, और m किसके इक्वल है n-1 के, तो यहाँ से ये आ गया, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन, देयरफॉर इट हैज, बेटा सो जाओ, एट लीस्ट वन pendant vertex से B belongs to T। ठीक है, हमने मान लिया कि अब इसके पास इस कंट्राडिक्शन से क्या हुआ कि इसके पास कम से कम एक पेंडेंट वर्टेक्स होगा से B belongs to T, एक पेंडेंट वर्टेक्स तो होगा इसके पास, और B की डिग्री क्या होगी, therefore B की डिग्री क्या होगी 1 होगी। अब B के ऊपर कोई ना कोई एज तो इंसिडेंट होती होगी, दैट इज एज इंसिडेंट ऑन B, ठीक है, therefore E is equal to मान लिया हमने B x। नाउ हमने एक नया ग्राफ लिया G डैश में हमने क्या किया B डैश E डैश, वेयर B डैश क्या है आपका B माइनस सिंगलटन B और E डैश क्या है E माइनस सिंगलटन E। अब आप ये देखो, ये पेंडेंट वर्टेक्स है, अलग से पड़ा हुआ है ग्राफ में, अगर इस वर्टेक्स को बाहर निकाल दे और इसकी एज को बाहर निकाल दे, तब भी जो नया ग्राफ क्या है इज कनेक्टेड है, कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है ना। और ऑल्सो तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका कनेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दिस इज स्टिल कनेक्टेड, और इट इज कौन सा ग्राफ है एंड कनेक्टेड, एंड इसका ऑर्डर कितना है n-1 और ये कितना है आपका m-1, वेयर हम इसे लिख सकते हैं m-1 इज वेयर आपका क्या है n-1 लेस देन n है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा n-2, लेट्स क्लियर, ठीक है। तो दिस implies, therefore this implies by induction G dash is 3, जो G dash is 2, तो this implies G dash has no circuit, ठीक है, G डैश के पास कोई सर्किट नहीं है। इंडक्शन से माने कि ये जो कनेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर क्या है n-1 इज लेस देन n है, तो इंडक्शन से ये ट्री हो जाएगा, ट्री है तो इसके पास कोई सर्किट नहीं है, ठीक है, तो इंडक्शन से ट्री है तो इट हैज नो सर्किट, तो वी क्लेम दैट, हमें क्या क्लेम करना है कि टी के पास भी कोई सर्किट नहीं है, तभी टी क्या हो जाएगा आपका ट्री हो जाएगा। तो सपोज कर लिया कि सपोज टी इक्वल टू BE हैज सर्किट, इसके पास सर्किट है से C, ठीक है। नाउ E बिलोंग्स टू C, E सर्किट से बिलोंग करेगा, बिकॉज इफ E अगर सर्किट के अंदर नहीं गया तो देन C इज सर्किट किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, अगर E C में नहीं गया तो C सर्किट किसमें हो जाएगा G डैश में, बस G डैश क्या है 3 है, G डैश के पास कोई सर्किट नहीं है, तो इस वजह से E बिलोंग्स टू C, E बिलोंग्स टू C है तो B भी आपका सर्किट में जाएगा, B सर्किट में जाएगा तो सर्किट के अंदर हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है 2 होती है, बट V की डिग्री क्या है 1 है, देयरफॉर ए कंट्राडिक्शन क्यों आई, हमने जूम किया था T हैज अ सर्किट, तो इस वजह से T के पास कोई सर्किट नहीं है और T क्या हो जाएगा आपका फ्री हो जाएगा।